بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین، کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے. کل ملک کی تمام پارلیمانی پارٹیز ملک کے معتبر ترین ایوان میں کھڑے ہو کر انڈیا کو 3 پیغام دیں گی. ایک، پورا ملک پاکستان کی سلامتی پر ایک ہے. پاکستان کے معاملے میں ملک میں کوئی اختلاف موجود نہیں. 2، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. انڈیا کو مقبوضہ کشمیر میں مظالم فوراً روکنا ہوں گے اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دینا ہوگا. ہم سب کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور 3، انڈیا نے اگر پاکستان کا پانی روکا یا سندھ طاس معاہدہ توڑنے کی غلطی کی تو ہم اسے اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھیں گے. یہ تینوں پیغام اہم ہیں اور یہ تینوں پیغام پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہائیسٹ فورم سے انڈیا کو پوری طاقت کے ساتھ دیے جائیں گے. لیکن یہ تینوں پیغام دینے سے پہلے ہی عمران خان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. عمران خان کا کہنا تھا کہ کل جوائنٹ سیشن ہے. ہم نے آل پارٹیز کانفرنس میں شاہ محمود کو ہم نے بھیجا. ہمارے بڑے ریزرویشنز تھے، میں یہ بتا دوں. شاہ محمود نے وہاں جا کے پارٹی کا موقف رکھا اور وہ جو ریزولوشن تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی. کل اس میں اور کیا کریں گے جا کے. ہم اگر جوائنٹ سیشن میں جاتے ہیں تو ہم نواز شریف کو ایز پرائم منسٹر انڈورس کرتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں کہ نواز شریف وہ لیجیٹیمیسی کھو بیٹھے ہیں. پرائم منسٹر کی جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے، جو اخلاقی قوت ہوتی ہے، وہ پیناما کی وجہ سے کھو بیٹھے ہیں. ہم نے بڑی ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کل کا جو جوائنٹ سیشن ہے اس کو بائیکاٹ کر رہی ہے. عمران خان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم کو 2 آپشنز بھی دیے. ایک آپشن یہ ہے کہ نواز شریف استعفیٰ دے دیں اور کوئی نون لیگ کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے، پارلیمنٹ چلتی رہتی ہے. یہ ایگزیکٹلی یہی آئس لینڈ میں ہوا تھا. اور جو دوسرا کہ نواز شریف فوری طور پہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں، جو ٹی او آرز ساری اپوزیشن نے ان کے سامنے گرینڈ اپوزیشن نے پیش کیے ہوئے ہیں. عمران خان شاید 30 اکتوبر کو اسلام آباد بند کرنے کی کوشش بھی کریں گے. عمران خان کی سیاست اپنی جگہ، پاناما لیکس پر ان کا موقف درست ہے. حکومت کو ٹی او آرز بنانے چاہیے، عدالتی کمیشن بھی بننا چاہیے، اور اگر وزیر اعظم گلٹی ہیں تو انہیں سزا بھی ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک قومی ایشوز کا تعلق ہے، خان صاحب کو ان میں ضرور شریک ہونا چاہیے. ان کی پارٹی کو مشترکہ اجلاس میں قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. خان صاحب کی طرف سے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ اتنا ہی غلط ہے جتنی غلط پاناما لیکس پر حکومت کی پالیسی ہے. قومی ایشوز کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. ان رویوں نے 1971 میں پاکستان توڑ دیا تھا. ہم اگر آج بھی اکٹھے نہ ہوئے، ہم اگر آج بھی نہ سنبھلے تو ہم باقی ماندہ ملک بھی کھو دیں گے. خان صاحب کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. خواتین، کیا پارلیمنٹ واقعی اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے؟ کیا حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں؟ اور کیا عمران خان اس بار کامیاب ہو جائیں گے یا پھر اس بار بھی بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے ہی ہوگا؟ ہم آج کے پروگرام میں یہ سارے نکتے ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب ایم این اے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شہلا رضا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور سلمان بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ایم این اے اور ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ واقعی وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتے؟ بہت شکریہ جاوید چوہدری صاحب. میں تو کیا، اس ملک کے لاکھوں لوگ جو 30 ستمبر کو جمع ہوئے تو وہاں پر جو پورا ہم نے کیس پیش کیا پیناما پیپرز کا، اس میں سارے ثبوت موجود تھے. اور ظاہر ہے آپ کو پلس پتہ چل جاتی ہے جلسے کی کہ لوگ کیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد نے پاناما لیگ ایک سائٹ پہ اور وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہ ماننا دوسری سائٹ پہ. آپ واقعی لٹرلی ان کو وزیر اعظم نہیں مانتے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ 3 اپریل کا انکشاف ہے. پاکستان کا سارا انٹیلیجنشیا، پاکستان کی پوری قوم اور سیاسی جماعتیں، تو پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. ہم سب یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو، نہیں اپنے ساتھ ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ اس کا کچھ ہونا چاہیے. اگر وزیر اعظم گلٹی ہے، وزیر اعظم خود فیصلہ ہونا چاہیے. خود اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے انہوں نے کہا کہ میں بالکل صاف ہوں اور میرا احتساب کیا جائے. لیکن کیا ہوا ہے کہ یہ ساری پارلیمنٹ، یہ ساری حکومت
पूरा निजाम उनके लिए कोई कानून साजी नहीं लेकिन करने सर के लिए वो सही तैयार है। सही सही देखो बात इसलिए आपकी हम दुरुस्त। समझते सर, हैं पनामा का कि मेरा सवाल कोई- ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म मानते हैं या नहीं मानते? मैं अर्ज करता हूं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आप जाहिर है नहीं ऐसे फर्द को वज़ीर आज़म नहीं माना जा सकता जिसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह सबूत मौजूद हो। लेकिन ये फरमाइएगा सर कि परवेज खटक साहब भी तो आपकी पार्टी का हिस्सा है ना, वो सीएम है। आज वो दोनों बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में वो शरीक थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर माना। आज नेशनल एक्शन प्लान पे मीटिंग थी, उसमें वो शामिल थे, उसमें प्रॉपर उनका इनपुट था, उन्होंने प्रॉपर उसमें शामिल हुए, शमूलियत अख्तियार की उन्होंने। इसी तरह आप ये देख लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, उसमें भी वो शरीक हुए। तो आपका मेरा ख्याल है वो सीएम साहब उनको प्राइम मिनिस्टर मानते हैं लेकिन आप नहीं मानते। देखिए मैं आपसे चौधरी साहब एक बात अर्ज करता हूँ, ये एक मुसलसल जद्दोजहद है जिसके मुख्तलिफ मराहिल हैं और ये कोई आज एक यानी चुटकी में नहीं शुरू हो गई, इसका एक पूरा 6 माह का पस मंजर है। इसमें बड़ी तगोदाव हुई है, अपोजिशन ने बहुत कोशिश की वो है सही है। और इसी तरह ये आगे आहिस्ता आहिस्ता आप आपका देखें मौक़िफ़ बिल्कुल सब दुरुस्त लोग है। खुल जाएंगे, सर, सब मैं लोग खुल इत्तफ़ाक़ जाएंगे, करता हूं अपना आपके अपना साथ। मौक़िफ़ इसके ऊपर लेकिन वाज़ेह कर मेरा देंगे। सवाल ये है कि परवेज खटक साहब भी प्राइम मिनिस्टर मानते हैं या नहीं मानते? यही मैं अर्ज करता हूं ना कि जूं आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि सारे पाकिस्तान ही उनको नहीं मानेगा। ओके, अब एक और सवाल, फिर उसके बाद दूसरे मेहमानों की तरफ आता हूं। अगर फर्ज करें आप प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते तो कल तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हुए थे और श्री मज़ारी साहबा भी हुए थे, लेकिन गोया कि कल मानते थे, आप आज नहीं मान रहे। देखिए वही मैंने कहा है ना कि जी वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी चीजें वाज़ेह होती चली जाएंगी। देखिए जहां तक भारत की जारियत का ताल्लुक है, कश्मीर के साथ यकजहती का ताल्लुक है, पाकिस्तान के अपने इत्तेहाद का ताल्लुक है, इसमें कोई दो आरा नहीं है, ठीक। और हुकूमत ये जो बुरहान वानी जो था ना जी, ये 6 जुलाई को शहीद हुआ था, कल परसों नहीं हुआ था। और कश्मीर के अंदर 100 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, 15,000 से ज्यादा लोग पैलेट नहीं, वो गन सही से है, जख्मी हो उसपे गए। तो पूरा इसलिए मैं पाकिस्तान समझता हूं कि सब- पूरा पाकिस्तान एक पेज पे है ना, है। उसमें कोई नहीं। असल जो तनाजा है वो तनाजा जो है पनामा के ऊपर है। हम समझते हैं कि वजीर आजम को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। चले साहब, दो चीजें, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है, प्राइम मिनिस्टर उस सियासी जमात के सरबराह भी हैं, उनको चले हम ब्रैकेट कर लेते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह भी हैं और साथ प्राइम मिनिस्टर भी हैं। दूसरा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट पूरी कौम की पार्लियामेंट है जिसमें पूरी कौम की नुमाइंदगी है। बाइकाट आपको या हुकूमत का करना चाहिए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का करना चाहिए, पार्लियामेंट का क्या कसूर है सारे मामले? देखिए सवाल तो यही हो रहा है ना इस वक्त पूरी जगह कि कल तक जो एक एपीसी थी जिसको प्रिजाइड ही जो है मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, कल तक आप उन्हें मान रहे थे। आज सुबह जो है वो भी, अब कल तो वो उसके इतने ही मेंबर हैं जितने इमरान साहब मेंबर हैं, इतने ही मेंबर हैं जितने खुर्शीद शाह हैं, और कल तो कंडक्ट भी वो नहीं करेंगे। तो एक ऐसे मौके पे जिस जॉइंट सेशन का कॉज ही जो है वो बहुत डिफरेंट है, जहां बाइकाट करना चाहिए तो वहां नहीं किया, जहां नहीं करना चाहिए तो वहां एपीसी कर बुलाई भी इसलिए गई थी कि जब हम जॉइंट सेशन में जाएं तो उस वक्त कोई जो है मुख्तलिफ आवाज ना आए और पूरी कौम मुत्तहिद होकर मोदी को ये बताए कि जी हमारे इख्तलाफात हमारे इंटरनल हैं, हम वो सियासत 4-6 दिन बाद कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे फौजियों को शहीद करना और ये झूठ बोलना, हमें डिमोरलाइज करने की कोशिश करना कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वो जो कुछ है वो हमारा इंटरनल है, लेकिन हमारी तरफ अगर किसी ने आंख उठाई तो हम सब एक हैं। तो आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को अपनी पूरी पार्टी समेत कल पार्लियामेंट में जाना चाहिए जी बिल्कुल, और एक मैसेज देना चाहिए इंटरनेशनल फोरम पे कि हम इस मामले में एक है, पनामा लीग का इशू हमारा इंटरनल है और हम इस मसले को हल करेंगे। देखिए शहीद साहब, जब भी रियासत की बात होती है ना तो ये हमेशा मुल्क में दस्तूर रहा है, चाहे आप शिमला जाते वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को देखें तो उन्होंने पार्लियामेंट में आके जब तमाम अपोजिशन पार्टी से बात की तो तमाम अपोजिशन पार्टी जो कि सख्त तरीन अपोजिशन पार्टी थी, जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब शहीद किया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो उन्होंने मिठाइयां तक बांटी थी, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर बात आई तो वो सब एक थी। फिर जिया से बड़ा दुश्मन हमारा कभी कोई नहीं, और हम आज भी जो है तारीख में उन सारे दौर को सियाबाब समझते हैं जो जिया की वजह से पीपल्स पार्टी को और मुल्क को भी देखना पड़ा, आइन फटा और सबने देखा। लेकिन जब जेनेवा में जो है कॉन्फ्रेंस थी और रशिया का इनखला था अफगानिस्तान से, तो उस वक्त जब एपीसी बुलाई जा रही थी जेनेवा जाने से पहले, तो बीबी साहिबा ने जो तमाम एमआरडी को रिप्रेजेंट कर रही थी, तमाम अपोजिशन पार्टी को, तो वो इस शर्त के साथ शरीक हुई थी कि जिया उसे अटेंड नहीं करेगी। भुट्टो साहब तो नवाज ये शरीफ से
मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हम मसलत नहीं कर रहे, हम जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि उनकी सारी नाअहलियत के बावजूद, उनकी गलतियों के बावजूद इस वक्त जो मसला है वो मुल्क की सालमियत का थोड़ा सा मौका मुख्तलिफ रखना पड़ता है। सलमान बलोच साहब, आपका क्या ख्याल है कि पार्लियामेंट में तमाम पार्टीज को शरीक होकर एक इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशली इंडिया को मैसेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, मेहमानान को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें जावेद चौधरी साहब, सबसे पहले तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो तकरीबन तमाम सियासी जमातों, मजहबी जमातों की डिमांड पे ही बुलाया गया है। हर सियासी जमात ये टॉक शो में भी कह रही थी, बयानात भी दे रही थी, लेकिन कश्मीर का जब से ये मामला चला है तो तमाम सियासी और मजहबी जमातें एक पेज पे आने लगी और एक पेज पे आ गई। और 30 का जो इनका हुआ शो हुआ जो लाहौर में, अच्छे लोग जमा कर लिए थे, तो उस पर हमने मुबारकबाद भी दी पीटीआई को, इनके चेयरमैन को, लेकिन अगर ना करते तो बेहतर रहता और सबने ये मशवरा भी दिया था। लेकिन जावेद चौधरी साहब, इससे दो चीज़ें बड़ी वाज़ह हो रही हैं। अगर इमरान खान साहब पानामा के इशू को उठा के मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या कश्मीर के इशू को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह से नवाज शरीफ साहब कश्मीर के इशू को उठा के पनामा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको वाइस वर्सा भी देखा जाए तो। और कल अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जा सकते हैं इमरान खान साहब के कहने पे, और बड़ी मिद्दतें कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की, बड़ी तारीफें कर रहे थे उनकी फेम ऑफ अच्छी प्रेस फरासत की, मैं तो अंदर की कहानी बता रहा हूँ, फेम ऑफ फरासत की बड़ी तारीफ कर रहे थे, उनके बड़े सजेशियस होने की तारीफ कर रहे थे। तो आज ऐसा क्या हो गया? इसके अलावा फिर मैं आपको एक और बात बताऊं कि जुमेरात के दिन मौलाना फजल रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी है, ऑनरेबल हमारे लिए, लेकिन उनका कोई नुमाइंदा नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा। उन्होंने एक स्पीच की, उसमें जो है उन्होंने जब ये कहा, उसमें ये भी कहा कि जब कश्मीर में अगर इंडिया जुल्म कर रहा है तो फाटा में कौन जुल्म कर रहा है? फाटा में हमारे लोग, हमें फौज उनकी मुराद थी। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में अगर हो रहा है तो झेलम में भी हो रहा है। तो ये भी अल्फाज कंडेमेबल है। आप अगर इस तरह से तशबीह देंगे तो आप किसकी हिमायत कर रहे हैं? इनडायरेक्टली बैकडोर पे आप किसके लिए, किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? यही अल्फाज अगर एमक्यूएम के किसी बंदे ने कह दिए होते कि जी कश्मीर में भी हो रहा है तो कराची में भी हो रहा है, तो हम पे तो आर्टिकल 6 का मुकदमा बन जाता, हमें तो सर्टिफिकेट बांटना शुरू हो जाते। अगर हम कह दें तो गद्दार, वो कहें तो सन ऑफ सोइल, असेंबली में नारे लगे हम पाकिस्तान को नहीं मानते, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहेंगे, वेयर आर यू हेडिंग? हम कहाँ लेके जा रहे हैं कौम को? तो ये नहीं चलेगा। दो अमली नहीं चलेगी। कश्मीर का इशू हमारे लिए, कश्मीर हमारी शेरग है, हम उसमें अपनी जाने देने को तैयार हैं, हर फोरम पे लड़ने को तैयार हैं। ज्वाइंट सेशन में बिल्कुल आना चाहिए था खान साहब को। एक दफा से फिर उन्होंने वो फैसला किया है जो 2014 में भी हमने कहा था कि आप सोलो फ्लाइट ना लें, धरने पे ना जाएं, आपको मुँह खानी पड़ी, वापस आए। एक दफा से फिर ये अपनी अकलमंदी जाहिर करते हुए, इनके मुशीरान कौन है हमें समझ नहीं आता। लेकिन सर वो इनके जलसे बड़े हो रहे हैं, ये भी एक हकीकत है कि सोलो फ्लाइट्स करते करते और वो बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। सर अगर जलसे की बुनियाद पे अगर आप हुकूमतें बनाने लगे हैं, और चौधरी साहब ने, एजाज चौधरी साहब ने जलसे की रात क्या कहा? हम ये तहरीक इसलिए चला रहे हैं कि वजीर आजम बनाना इमरान खान को। तो व्हाट इज दिस? पानामा तो पीछे रह गया। नहीं सर, वो तो सारी पार्टीज अपना अपना मैं पीछे हटता हूं, मैं तो इससे कोई पीछे नहीं हटता। ये फरमाइएगा कि पानामा लीक्स पे आपकी जो पॉलिसी है अब वो पाकिस्तान की यूनिटी को तोड़ रही है। आपको चाहिए था कि आप बहुत पहले इस पे फैसला कर लेते, और अब भी वक्त है आपके पास कि आप इस पे फैसला करें, कम से कम कौम यूनाइट तो रहे। आपकी कमजोरी की वजह से यूनिटी टूटती हुई नजर आ रही इस मुल्क की, तो आपको महसूस नहीं हो रहा कि आपका गलत फैसला? जैसा बात यह है कि बेवक्त सही फैसले किए हुए भी नुकसान देते हैं। बात यह है कि अगर आज जो बात की जा रही है, ये तो पिछले मैं अगर TORs की बात करूं कि सेनेट में पीपल्स पार्टी लेकर आ गई बिल, हम कौमी असेंबली में लेकर आ गए, देखेंगे हो रहा, इस पर बड़ी बहस हो चुकी। लेकिन मेरी ऐसा सुने, इस पर बड़ी बहस हो चुकी। मगर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि दुनिया में जहां कहीं पार्लियामानी निज़ाम है, अगर वहां कोई जंग का माहौल पैदा होता है तो लोग वहां के या रियासतें जो हैं वो पार्लियामेंट की तरफ ही रुजू करती हैं। ये नहीं पाकिस्तान में नया कोई खेल नहीं हो रहा। नहीं, उनका कहना है कि ये माहौल जानबूझ के आप पैदा कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप पानामा लीक से बचना चाहते हैं? हाँ, इसलिए बात यह है कि अगर कल का जो इजलास ज्वाइंट सेशन है, ये अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया जा रहा है, और ये हकीकत है कि जिसकी अक्सरियत होती है पार्लियामेंट में,
اس کی حکومت بن جاتی ہے اور دوسری جو اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہیں جماعتیں، مگر ان کا حق جو ہے، استحقاق جو ہے، نہ حکومت کے نمائندوں کا نہ اپوزیشن کے نمائندوں کا کم یا زیادہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کل کے پارلیمانی جو ابھی آپ سب بات کر رہے تھے کہ جناب کل تو شاہ محمود قریشی چلے گئے، آج ان کے سی ایم چلے گئے، تو آج پھر شام کو کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ کشمیر پارٹی ایشو نے پر فیصلہ کیا نا سر، جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو سب مانتے ہیں، آپ کی بھی پارٹی جب فیصلہ کرتی ہے نا تو آپ کے ارکان بھی مانتے ہیں اس اچھا کو۔ چلیں چوہدری صاحب، اگر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ 1-1.5 منٹ مجھے دے دیں، میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایشو پر یا بارڈروں پر کشیدہ صورتحال ہو، اس پر کبھی کسی نے سیاست نہیں کی پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں۔ پاکستان میں ڈکٹیٹر بھی آئے، جس طرح ابھی شیلا بی بی کہہ رہی تھی کہ اس وقت اگر کشیدگی ہوئی یا کشمیر ایشو ہوا تو اگر انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو اکٹھا کیا تو سب لوگ گئے۔ کمیشن بنانے میں کیا اعتراض ہے سر؟ میں اس پہ بھی بات مسئلہ حل کریں تاکہ قوم آگے کی طرف جائے۔ میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن میری یہ بات مکمل ہو لینے دیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا، اس وقت سب لوگ گئے کہ کشمیر ایشو ہے، پاکستان کا ایشو ہے، پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہے، اس پر سب کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ تو آئین توڑ کے آیا ہوا ہے تو ہم تو کسی طور پر بھی ان کی بلائے ہوئے اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ کل کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ پاناما لیکس پہ آپ کو کمیشن بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو 6 ماہ سے چلیں، ہماری طرف سے غلطی ہے، ہماری طرف سے سستی ہے، ہم بچ رہے ہیں، آپ کا چلیں جو کچھ کہہ دیا اس کی بتی کے پیچھے پیچھے قوم پھر رہی ہے، اچھا میری سن، جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ میں مانتا ہوں، لیکن ایک چیز گزارش ہے، کیا کنٹینر پر کھڑے ہو کر اس کے ثبوت تو نہیں ہم دیں گے؟ آپ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں، آپ عدلیہ میں گئے ہیں، آپ IPR میں گئے ہیں، آپ اس کے پاس گئے ہیں، نیب کے پاس گئے، مطلب کسی فورم پر ٹکیں تو صحیح نا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک یہ فرمائیے گا کہ اگر پارلیمنٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہمیت کھو چکی ہے اور وہاں جانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ سر آپ اس میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، مراد بھی لے رہے ہیں، اور ساتھ جب ضرورت پڑتی ہے اس کو بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، کیا یہ جو تینوں پارلیمانی جماعتیں ہیں انہوں نے کبھی بائیکاٹ نہیں کیا؟ یہ پارلیمانی سیاست کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو اس سے اتفاق نہ ہو، نہیں میں آپ سے عرض کروں، میری گزارش سن لیں اگر آپ، یعنی کشمیر بھارت کی جارحیت، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا، 30 ستمبر کو پورا زور لگا کے کہا، جس پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب APC میں گئے، ایک منٹ اہمیت تو پارلیمنٹ کی ہوتی ہے، میں عرض کرتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں اس پارلیمنٹ کو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم جو 6 ماہ سے ایک ایسی سادہ سی سوال کا جواب نہیں دے رہا اور ثابت شدہ مجرم بن چکا ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ کیسے نظام آگے بڑھے گا؟ کل سر جو پرائم منسٹر نے کانفرنس بلوائی تھی وہ تو میزبان تھے، میں آپ کے سوال کا جواب دینا تھا۔ پارلیمنٹ تو آپ میزبان ہیں، میں یہ کہتا ہوں پوری قوم کی نمائندہ، وہاں سے بائیکاٹ کر رہے ہیں جہاں پر بندہ آپ کو اپنے گھر بلا رہا ہے وہاں جا رہے ہیں۔ آج جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں اس کا کل ہم جواب دے چکے ہیں، آپ بعد از وقت یہ سوال اٹھا رہے ہیں، یعنی اس وزیر اعظم کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ یکجہتی کرنے کا ہم سارا کام پورا کر چکے ہیں، لیکن ہم پارلیمنٹ میں کر رہی ہیں بھائی، میں عرض کر نہیں تو پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں تو آپ APC کر لیا کریں اور اسی میں مسئلے حل کریں۔ اگر APC نہ ہو رہی ہوتی تو ہم دوسری طرح اس کو سوچ لیتے۔ APC ہو گئی، وہاں پر ساری چیزیں ہم نے پوری طرح کر دیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ پارلیمنٹ کو آپ اپنی پارلیمنٹ نہیں سمجھتے؟ نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سوال ہے سر، پارلیمنٹ تو پاکستان کی پارلیمنٹ کی، اس سے کیوں بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ ایک منٹ سن تو لیں، پہلے کبھی بائیکاٹ نہیں ہوا سر، اس مسئلے پہ کبھی نہیں ہوا۔ میں آپ سے آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ حقیقی اپوزیشن ہے، حقیقی اپوزیشن ہی نہیں ہوگی تو یہ فرمائیے کہ پارلیمنٹ کی کیا توقیر رہے گی؟ ایشو کے اوپر آپ آ جائیں۔ ایشو یہ ہے کہ آپ اپنا ری ایٹریٹ کرنا چاہتے ہیں بھارت کو، اس کی جارحیت کے حوالے سے کشمیریوں کے اظہار یکجہتی کل ہو چکا ہے، استعفیٰ دے دیں، اور ہم پوری طرح
हम पूरी तरह 30 तारीख को अवाम के सामने लाखों अच्छा सर, लोगों के ये सामने फरमाइए सर, पार्लियामेंट अपनी को राय का छोड़ इजहार क्यों कर देते चुके हैं? हैं। मेरा फिर आपको मशवरा है, मेरा आप इसको ख्याल है, छोड़ दें, मेरा ख्याल है, और ये बात छोड़ने सही के है, बाद MPM ने आप सलमान जलसों भाई में ने फैसला कहा- कर लिया करें। सलमान भाई ने कहा है हम सोचना शुरू करते हैं, वो भी कहते हैं हम भी सोचना शुरू तो ये करेंगे। आपके अगले coalition मैं ये partner- अगले cousin आपके ये हैं। मैं आपसे सारे कजन है हमारे, कौन आपको पता ही क्योंकि है, सर, एक- यानी एक- जिनके एक- बारे में आपने कहा है वो भी यहाँ ही है, ये भी यहाँ ही है, इसलिए हम किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते। मैं तो सिर्फ आपसे ये चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि सारी गुफ्तगू में जावेद लतीफ साहब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, 6 महीने गुजरने के बाद जो सवाल है उससे इधर उधर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? नहीं, आप मुझे उस पे इनका मुहासबा किया जाएगा। हाँ, उस पे यही- इनका एहतसाब जरूर आज अगर इनको पानामा लीज का जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब, आज अगर बहस ही ना हो रही होती, हकीकत है आज इस बात। बहस ही ना हो रही लेकिन- होती अगर हम बाइकआउट आप का कल ऐलान के करें। लेकिन सर, बाइकआउट की बात करें। सवाल सिर्फ ये है कि अगर आपको पार्लियामेंट आप ये समझते हैं कि उसकी कोई अहमियत नहीं, उसकी करारदादों की कोई अहमियत नहीं, तो फिर आपको ऐसे छोड़ मैं देना चाहिए। आपसे ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद एक बात सिर्फ मुझे कह लेने दे, ये कल तो एक दिन है ना, अगले दिन पता लग जाएगा कि उस बिल के साथ क्या करते हैं जो पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन का मुश्तरका बिल है। उसके बाद फैसला करेंगे आप। नहीं, आपको पार्लियामेंट में पता चल जाएगा। हमारा फैसला तो फैसला है। ओके। जब तक नवाज शरीफ इसके बारे में अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं करते, उस वक्त तक पार्लियामेंट में जाने का कोई फायदा नहीं है। आप नहीं जाएंगे, उस वक्त तक नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। जब तक कल कमीशन कर नहीं दे, बनता, देखे ना, कल कर दे। मैं सवाल आपसे पूछ रहा था, जब तक कमीशन नहीं बनता आप पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। ओके, छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शैला साहब, ये फरमाइएगा कि वाकई पार्लियामेंट आप समझती हैं कि अहमियत खत्म हो गई उसकी और अब इसको खत्म कर देना चाहिए, नए इलेक्शन करवाने चाहिए, या फिर आप समझती हैं कि तौकीर है अभी इसकी कोई? जी, हमारी नज़र में तो बहुत है। हमने बहुत इस सिस्टम के लिए जाने दी हैं और बहुत बड़ा रोल है हमारा। अगर हमारी पार्टी को निकाल दिया जाए, हमारी पार्टी की सियासत को, तो क्या रह जाएगा पार्लियामेंट की जद्दोजहद के लिए। और पार्लियामेंट में जितने, मैंने कहा, जितने बराबर के मेंबर खुर्शीद शाह साहब हैं, इतने इमरान खान साहब हैं, इतने ही नवाज शरीफ साहब हैं। और देखें, अभी जो है ना, बातों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि पनामा पे TORs नहीं बना सकती तो फिर क्या फायदा इसका? देखिए, एक कोशिश हुई। जाहिर है कि हम ये समझते हैं कि वजीर आजम के ख़ानदान का नाम है और TORs बनाने में लयतुलाल से जो है गवर्नमेंट का जो है वो काम ले रही है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम सिस्टम उलट दें? सिस्टम उलटने से क्या हमें रिजल्ट मिल जाएगा? फ़र्ज़ कह रहे हैं कि हम ये इस हुकूमत को गिरा देते हैं, तो फिर जो इलेक्शन होंगे उसके बाद भी आपको एक कानून ही बनाना पड़ेगा, एक पार्लियामेंट ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि हम अगर को PTI इस्लामाबाद बंद कर देती, जैसे उनका फैसला है, और मुझे महसूस होता है कि 30 तारीख को शायद ये काम करेंगे, अगर ये पूरा सिस्टम मुंजमद हो जाता है और PTI इसको यलगार कर देती है सिस्टम पे, तो क्या होगा? आप ये समझिए जमहूरियत चली जाएगी। बात ये नहीं है कि जमहूरियत चली जाएगी। जमहूरियत चली भी जाए और फिर कोई एक अच्छा आदमी आके 4 महीने बाद कहीं से आसमान से आके इलेक्शन करा दे, तो सिस्टम तो यही रहेगा ना। आइन ने जो ये सिस्टम दिया है, आपको किसी भी चीज के लिए लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, और लेजिस्लेशन असेंबली करती है, सिस्टम करता है। मेरा जो कहना था, बार बार हम दो बातों को मिक्स कर रहे हैं कि देखें, बाइकआउट करती हैं ऑपोजिशंस, लेकिन जब मामला आपकी रियासत पे हमले का है तो उस वक्त तो नहीं अटैक करना ना। या वजीर आजम कोई भी हो, भुट्टो साहब को भी उनके जमाने में बड़ी मुखालफतें थी, चाहे नवाज शरीफ साहब की भी हो, 2/3 मेजोरिटी के हैं, बहुत मुखालफतें हैं उनकी, एक एक बात पे मुखालफत करते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ हम नवाज शरीफ साहब को बड़ा बनाने नहीं जा रहे, यहाँ हम मोदी को जवाब देने चाह रहे हैं कि ये जैसे भी हैं, क्योंकि तुमने हमारे मुल्क की तरफ देखा है तो हम एक है। यहाँ पे ये बात नहीं है कि ये इसने क्यों स्ट्राइक की, तो हमें थोड़े से मामले को साफ रखना चाहिए और हमें देखना ये चाहिए कि हम जो ये करने जा रहे हैं इससे नतीजा क्या होगा। याद होगी इमरान खान साहब की जो रायवेंट के सामने की थी, उन्होंने मोदी साहब को मैसेज दिया था कि हमारा प्राइमेट बुजदल है। वो आपको शायद वो देखा नहीं आपने, वो ये कह रहे थे ये बुजदिल है, वो बार बार वो तो उन्होंने एक मैसेज उन्होंने दे दिया उन्होंने उस तरफ उनको, कि उन्होंने कहा ये बात ये नहीं है। बात ये है कि पूरी मैं ये समझती हूँ कि APC इसलिए बुलाई गई थी ताकि जो डिसेंटिंग वॉइस हैं वो हम पार्लियामेंट में ना रेस करें। यानी जो कुछ अल्टीमेटली सारे कानून बनेगा तो पार्लियामेंट भी बनेगा, और अगर ये पार्लियामेंट खत्म कर देते अगली पार्लियामेंट आएगी फिर वो कानून ही बनाएगी, और जब तक वो पार्लियामेंट नहीं आएगी कानून नहीं बन सकेगा, फैसला नहीं हो सकेगा। इससे पहले भी हमने ये कहा था कि
جو الیکشن میں مسئلے ہوئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اتنی دیر جمہوریت نہیں رہی. جب ہم دیکھ رہے ہیں امپلیمنٹیشن میں کس کس چیز میں فلاز آ رہے ہیں تو ہم اسے صحیح کر رہے ہیں. کیونکہ اور یہی وقت تھا کہ جب ہم نے کہا کہ الیکٹورل ریفارمز جو ہیں وہ دھرنے میں بیٹھ کے نہیں آئیں گی، وہ وہاں آئیں گی. سماج صاحب آپ کی طرف آنا، لیکن میاں صاحب سے ایک چھوٹا سا کمنٹ اگر آپ اجازت دیں. میاں صاحب آپ یہ فرمائیے، اتنی بڑی پارٹی ہے آپ کی، اس میں میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا؟ جب وہ عمران خان صاحب آپشن دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ بے شک میاں جاوید لطیف کو پرائم منسٹر بنا دیں، تو آپ کیوں نہیں بن جاتے سر مسئلہ ہی حل کریں؟ چوئی صاحب گزارش یہ ہے کہ کیا عمران خان کی خواہش پہ ہر کام ہوئے گا؟ آپ اداروں میں بھی چاہو کہ میری مرضی کے فیصلے آئیں تو تب میں مانوں گا. اسی طرح آپ کسی کی جماعت کی اکثریت ہو یا اقلیت ہو، آپ اس میں چاہو گے کہ اس کو قائد بناؤ تو میں تب مانوں گا. یہ کوئی رویہ ٹھیک نہیں ہے. کسی اور کو بنا دیں، جو مسئلہ حل کریں سر. اچھا، یہ پاکستان کی یونٹی کو توڑیں. ایک سیکنڈ، مسئلہ کیا عمران خان کا ہے؟ مسئلہ قوم کا ہے نا. قوم نے منتخب کیا نا بھائی. جس طرح عمران خان کو خیبر پختونخوا میں حکومت ملی، لوگوں نے دی، ہم مانتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم وہ مانتے ہیں تو پارلیمنٹ میں اگر ہماری اکثریت ہے تو لوگوں نے ہمیں میجورٹی دی نا. تو آپ کی پارٹی میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میری کہنے کا مطلب یہ کہ پوری پارٹی میں ان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. بالکل یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف کے نام پہ ہمیں ووٹ ملتا ہے. یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو یہ حقیقت چینج ہو چکی ہے. ایم کے ایم کو الطاف حسین صاحب کے نام پہ ووٹ ملتے ہیں. اب وہ دیکھیں، وہ الطاف حسین کا پوری پارٹی پاکستان ہے. پھر آج پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان. میری بات سن لے، بڑی اچھی بات کی آپ نے. بات یہ ہے کہ الطاف حسین کے نام پہ ایم کیو ایم تھی، ٹھیک ہے. اگر الطاف حسین پریشر گروپ بنائے، اگر الطاف حسین ریاست کے خلاف بولے، اگر شیخ مجیب الرحمان ریاست کے خلاف بولتے بولتے مسائل کا ذکر کرتے کرتے پاکستان کو دو لخت کر جائے، اور وہی کام جو ہے عمران خان کرنا شروع کر دیں، تو آپ اس کو تبدیلی کہیں گے؟ تو سر اس کو نیا پاکستان توڑ رہے ہیں بھائی. یہی تو کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ ان کا کوئی الگ صوبہ نہیں ہے. میرے شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ جو کچھ عمران خان کر رہا ہے، یہی پریشر انڈیا پاکستان پر اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے دباؤ بڑھا کر پاکستان کی کشمیر سے اور دنیا کی کشمیر سے نظریں ہٹانے کے لیے کر رہا ہے. اور وہی کام جو ہے عمران خان کر رہا ہے. پھر فرق کیا ہوا بھائی؟ میں تو کہتا ہوں شعوری لاشعوری طور پہ جو کام کر رہا ہے کلیم یہ تھا ہمیشہ کہ آپ نیا پاکستان بنا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ پرانا بھی توڑ رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ کل پرسوں شروع ہوا ہے نا جی. اچھا، کل پرسوں سے؟ یہ تو 6 ماہ سے شروع ہے بھائی. اور کشمیر کا مسئلہ 70 سال سے ہے. آپ کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو نظر نہیں آتا. اور آپ کی کام کرتی ہے، انتفاضہ 27 برس پہلے شروع ہوا تھا. 80,000 لوگ شہید اس میں ہوئے تھے. آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے. ایسے اجلاس کا بائیکاٹ کیا 70 سالوں میں؟ میں سمجھتا ہوں اس اجلاس سے نکلنا اس لیے ضروری ہے. اس اجلاس سے نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی ڈکیتی کے بعد جس میں وزیر اعظم پوری طرح ملوث ہے، اور یہ کل آپ کو معلوم یعنی انڈیا کبھی بھی نہیں، شام تک نہیں تھا اس بات کا. یہ ہم 30 ستمبر کو بھی کہہ رہے ہیں اور 6 مہینے پہلے بھی کہہ رہے ہیں. ایک پریشر گروپ جو ہے، ایک مسلح جتھا جو ہے وہ پاکستان پر قبضہ کر لے گا. یہ اسلام آباد پر 30 اکتوبر کو کیا قبضہ کر لیں گے؟ اس طرح تو پھر کل کو کوئی اور اٹھے گا 20,000 میں ڈنڈا لے کر آئے گا اور پاکستان پر قبضہ کر لے گا. جو ماڈل ٹاؤن سے نکلا تھا اور چوئی صاحب جس کے حصہ تھے، صورتکار کو نہیں آنے دیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، صورتکار ہے. مجھے بتائیں، اگر اعظم پکڑا گیا تو اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ پکڑے گا کوئی، آپ میں ضرورت ہو تو پکڑے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ چور ہیں، چوری صاحب آپ کو کس نے کہا ہے؟ عمران خان کو کس نے کہہ دیا کہ حکومت ہماری آنے والی ہے؟ کون ہے آپ کے پیچھے؟ بتاؤ نا. پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. تھرڈ امپائر کی جو بات کرتے ہیں، تھرڈ امپائر کی، آپ کو پاکستانی قوم پر اعتماد نہیں ہے، آپ کو تھرڈ امپائر پر اعتماد ہے. آپ غلط بات کرتے ہیں. نواز شریف حکومت میں آیا نا جی 3.5 سال پہلے، 4.5 ارب
भारत गया है, उससे पहले कभी एक पाई नहीं की। इसका रिश्तेदार मोदी है, अगर इसके घर वो आया, नहीं, नहीं, बिल्कुल इसकी ठीक है, शादियों सलमान पे भाई आना साहब, जाना ये इसका है। ये बात आप ये सही कहते कश्मीर हैं। आज इनको ये आज याद मोदी आ का- गया। आज मोदी का ये- यार आ रहा है, कल तक हाँ, क्या था? कब कल तक आपको याद नहीं आपके आपके पास यार यानी हमें जाति आज उमरा शाम जाने से तक रोक रहे आपको थे। मोदी का याद हमें नहीं आया। जाति उमरा आज जाने से आप रोक बात रहे कर थे, रहे हैं। वहां पे मोदी आज के लिए 70 सालों रास्ता में खोला हुआ था। पाकिस्तानी कौम ने तो मैं नवाज कहता शरीफ हूं- को लीडर माना। किसने? नवाज शरीफ को लीडर माना, किसने कभी जुल्फ़िकार लीडर माना? भुट्टो को लीडर सारे माना, इलेक्शन चोरी डॉक्टर करके कलीर खान को लीडर जो माना, मार्शल लॉ के पाकिस्तान के कमरे में दफाई उगा मामलों हुआ, में ये तीनों मौसम है मार्शल पाकिस्तान लॉ के के। हमले कैसी में बात उगा करते हो हुआ, तुम? वो कभी कैसे अब लीडर कैसी हो सकता बात है? करते हो? ज़ियाउल्लाह की गोद में पलने के बाद आप अपने लथिया आप को गली में लीडर कहते हैं? भाई मेरी बात सुनो, जिसकी लाहौर का कब्र के जलसा ऊपर करने के जाके बाद दो दिन दुआएं लथिया करते गली क्या थे करते कि रहे सारी हो? उम्र लग जाए क्या मुझे। पाकिस्तान की सरहदों से कशीदगी कम हो गई थी? मैं लथिया अर्ज गली करता कहते? कशीदगी क्या परसों हुई, करते रहे लथिया गली? कशीदगी परसों हुई ये है। बात करते हो? 3.5 साल से हाँ, आपको नजर नहीं आ रहा। 3.5 साल से नजर नहीं आ सालों में रहा। हुकूमत ने जो किया वो भी सामने खाक सबके। किया है। अगर हमने नहीं गुर्बत, किया होता तो महंगाई, कश्मीर में वो बोलते बेरोजगारी, नहीं। कश्मीरी आपको लोग रो गालियां रहे दे हैं रहे आपकी हैं। जान को, आपकी जान को कश्मीरी रो रहे हैं। आपका सर मुझे स्यापा वक्फा कर रहे कश्मीर हैं। के लिए आपने क्या किया है? वक्फा लें। कुछ भी एक ऐसा काम छोटे से नहीं ब्रेक किया। और ब्रेक के बाद आप साथ ये नहीं, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। सलमान भाई साहब, ये कहा जाता है कि ये बड़ा आइडियल टाइम है हुकूमत के खिलाफ कि पीटीआई इस्तीफे दे दे पार्लियामेंट से और उसके बाद एमक्यूएम इनको सपोर्ट करे और एमक्यूएम इस्तीफे दे दे तो गवर्नमेंट गई, नए इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये उस तरफ तो जाती हुई सूरत हाल तो नहीं नजर आ रही है आपको कहीं? सर ये हो सकता था और शायद खान साहब खुश भी थे कि जब 22 का जो सिलसिला हुआ था 22 अगस्त का, उसके बाद जब हमने इज़हार ला ताल्लुक़ किया तो खान साहब शायद यही खुश थे कि फिर वो इस्तीफे का डिमांड है तो एमक्यूएम इस्तीफे दे देगी। फिर पीटीआई भी लाइन में थी कि हम भी इस्तीफे दे देंगे इस्लामाबाद से और कौमी से और सूबाई से केपीके से। लेकिन खैर हमने वो अपना फैसला किया एमक्यूएम पाकिस्तान ने कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन चौसा बात यह है कि जैसे मियां लतीफ़ साहब ने भी कहा कि इन हालात में अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें इनके परसेप्शन नहीं है जनरल अवाम में कि आप जो है मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम ये कहते थे कि मोदी का यार नवाज शरीफ है, लेकिन जो कहते थे बिलावल साहब वो भी कल चले गए इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तमाम लोग चले गए वहाँ पे। सबसे बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाँ का। बिल्कुल गया। अच्छा वजीर आजम, अब कह रहे वजीर आजम असेंबली में आ रहा है, हम उसको नहीं मानते तो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन का बाइकाट कर रहे हैं। तो कल वजीर आजम ने आपको अपने दफ्तर बुलाया था, वहां तो आप चले गए। तो वजीर आजम को तो आपने मान लिया। पार्लियामेंट में तो ऐसे वो रुकने पार्लियामेंट है जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, पार्लियामेंट पाकिस्तान की जैसे मैं लतीफ साहब हैं, ऐसे वो रुकने कौमी असेंबली है वहाँ पे। अब आप ये पार्लियामेंट का बाइकाट कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम को जिसके नुमाइंदा फोरम है ये सेनेट और कौमी असेंबली, जो तमाम 20 करोड़ लोगों के नुमाइंदे मौजूद होंगे कल, और सिर्फ बात होगी कश्मीर के इशू पे, कोई अदर बात नहीं होगी। आपको आना चाहिए। और 1.5-2 माह पहले भी तो आप आए थे जॉइंट सेशन में, जब मियां साहब ने कहा था पानामा के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूं। उस वक्त आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप मियां साहब को काउंटर करते, लेकिन किसी के इशारे पे आप जो है बगैर तकरीर किए हुए जॉइंट अपोजिशन के साथ बाइकाट करके निकल गए। दूसरे दिन आपको एहसास हुआ कि जी मुझे तकरीर करनी चाहिए थी, तो उस वक्त तो आप उनको फेवर देंगे मियां साहब को। वो मौका था आपके लिए, हाई टाइम था कि आप उनके खिलाफ बात करते। ये टाइम नहीं है। अभी हमारी जो बहस जितनी भी हो रही है ना, कश्मीर के लोग भी देख रहे होंगे आपका प्रोग्राम, पाकिस्तान की कौम भी देख रही होगी। आज कश्मीर में कश्मीरी बच्चा लड़ रहा है, जज्बा शहादत से सरशार है। हमने ये भी फुटेज देखी कि फौजी भाग रहे हैं, बच्चे पीछे पत्थर लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं गोली मारो, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा जो रवैया आज का है सियासतदानों का, क्या मैसेज दे रहा है? जनाब आपको यूनाइटेड होने की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। भारत को पैगाम देना है कि अब आपको कश्मीर का फैसला करना होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पैगाम देना है कि अब कोई हमारे पास गुंजाइश नहीं है, कश्मीरियों को हक खुद इरादियत आपको देना होगा। अगर नहीं देंगे तो लेने के लिए सिलसिला तो जारी है। अब जब नून लीग, जिसपे ये इल्जाम था कि रो के एजेंट उसके यहाँ बगैर वीजे के आते हैं, 4.5 अरब की फंडिंग कर दी। आज ताहिरुल कादरी साहब भी सवाल करता हूं मैं, इस मसले पे कहां है? चले गए वापस लंदन में? चले गए। क्यों चले गए? अगर पाकिस्तान का दर्द है तो ऐसे तो नहीं होगा। एक कजन जो है इंटरनेशनली बात कर रहा है, एक कजन जो है नथिया गली में बैठा है, ये कैसे चलेगा यार? जैसा ये जवाब दें आप सर। 2 चीजें, एक बात तो ये है कि पार्लियामेंट जब कल एक मुश्तरका करारदाद पास करेगी तो उसमें आप नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पाकिस्तान की आवाज का साथ नहीं दिया। एक जो यूनिटी नजर आनी चाहिए, यूनिटी आपने ब्रेक कर दी, तो आपके ऊपर उंगलियां तो उठेंगी सर। मेरा ख्याल दूसरा ये है कि पार्लियामेंट, अगर आपको आप ये समझते हैं कि वारा नहीं खाती पार्लियामेंट, आपको ये बेतुकीर हो गई है और इसमें नहीं जाना चाहिए आपको, तो फिर आप तनख्वाह क्यों ले रहे हैं सर? मराद क्यों ले रहे हैं आप? तनख्वाह लेते हुए आपको ये पार्लियामेंट ठीक लगती है और जब करारदाद पास करनी होती है तो उस वक्त आप आते नहीं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ चौधरी साहब, मेरा ख्याल है इतनी रेपुटेशन हो चुकी है और सवाए हम पॉइंट स्कोरिंग के और कोई बात नहीं कह रहे हैं। जो असल क्रक्स है वो ये है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं,
भारत के जारहाना अज़ाइम के पार्लियामेंट ऊपर से हम बाहर उन्हें खड़े होके आप साथ हैं। बाहर खड़े होके भी और अंदर नहीं। अंदर बैठ के भी ये बात इतनी दफा बात हो चुकी है कि इसके ऊपर अब मजीद बात की जरूरत नहीं है। हमारा कंसर्न ये है और सारी पार्लियामेंट का कंसर्न नून लीग के लोगों के अलावा ये है कि हमारा वजीर आजम जो है वो इम्प्लीकेटेड है एक बहुत बड़े केस के अंदर और 6 माह से उसका कोई बन नहीं रहा। हम ये बिल्कुल बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए और अलग करने के लिए हमने कहा है कि ये हमारा हक है कि इस सेशन से हम बाइकआउट कर दें। तो सर जो मैसेज देना था हम दे चुके हैं। और भी हल है, कल जाएं आप, कौम का साथ दें, आप उस करारदाद को पास करवाएं और उससे अगले दिन आप ऐलान कर दें कि हम पार्लियामेंट की जो वर्किंग होती है आप भी जानते हैं, ये भी सारे जानते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि वहां पर जाना और ना जाना बिल्कुल बराबर था। हमने कहा कि इससे एक कंफ्यूजन फैलेगा। हम कह रहे हैं कि वजीर आजम को उस वक्त तक नहीं मानते जब तक कोई निजाम एहतसाब का नहीं बन जाता। अगर वो वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हाउस से बाहर हो, अपने ईवान में हो, वो आपको दावत दे तो मान लेते। वो इसलिए पार्लियामेंट के अंदर नहीं मानते। वो इसलिए कि जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो हम दे चुके हैं। ठीक है, वो मैसेज दे चुके हैं जो हम इकट्ठी पूरी कौम इकट्ठा होने का देखिए एक दे चुके, इसलिए गए जावेद लतीफ साहब, क्योंकि वो मॉरल ग्राउंड्स पे वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब हार गए हैं, तो अब मोरालिटी का इशू है। तो आप अपने आप को क्लीन मेरा ख्याल कर लें। पाकिस्तान को यूनिटी जो है पाकिस्तान की बहुत इस वक्त अजीज है। मैंने एक जुमला बोला था माशी सहूलतकार का। अपने इर्द गिर्द देखें और जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, क्या इमरान खान की जेब से खर्च हो रहा है? कहाँ खर्च हो रहा है? ये जलसों जुलूसों पे उनकी अपनी जिंदगी में यहाँ से किचन पर एक सेकंड यार, एक सेकंड जो साहब एक सेकंड बचाना नहीं ये चाहते। कोई तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। आप बात को हौसले से सुने तो सही यार। हम जलसा करते हैं, आप उसके ऊपर आप जलसा तो अपने किचन का खर्चा भी, आपके किचन का खर्चा भी आप सारा माल यहाँ से चोरी करके बाहर ले गए, लग्जरी लाइफ गुजारा कर रही है। अपना माल तामीर किया है, 8.5 अरब रुपया उसने लगा दिया। नहीं आप बताइए ना, क्यों ना मैं बोलूं? आप हमारे जलसे के ऊपर क्यों एतराज कर रहे हैं? मैं एक चीज चौर साहब आखिर में मेरे, क्योंकि आपका वक्त खत्म हो रहा है, बात ये है मेरा नहीं, आपका भी खत्म हो गया। जलसा क्यों? जलसा तो शानदार था। इस प्रोग्राम जलसा आप भी कर लेना, आप जब चाहते हैं जलसा करते हैं। जो सब आपका खर्चा नहीं, आपका जलसा बगैर खर्चों से होता है। एक चीज खुदा के लिए सर, इन हाउस चौर साहब, इनको सिर्फ ये कह दिया जाए कि जो आपको थर्ड एम्पायर का शौक है ना, बार बार ये बार बार नहीं उठेंगे, ये हाथ नहीं उठेंगे बार बार। नवाज शरीफ साहब कह बड़ी रहे हैं, जल्दी है आपको। ख्वाजा आसिफ को बना दो, इसाक डार को बना दो, एस्टेब्लिश